बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लासेस के बारे में। क्लास क्या होता है? आई बिलीव इट्स माय नाइन्थ online class. Online in the sense I upload it on YouTube, and then I share that very link on the official page of Government Boys Higher Secondary School Karihama. So we believe our videos have got reach, at least we reached our specific targets to a level, to some extent we are satisfied anyway. So class क्या होता है? Class is a group of words uh, with meaning. So what's the difference between clause and sentence? Sentence is a complete unit. Clause can be sometimes complete, sometimes incomplete. It's a group of words, sometimes complete meaning, sometimes incomplete meaning. Yes, it's a part of sentence. It's an important unit of grammar. So, अब यहाँ फोकस करें. It's a simple sentence or it can be part of sentence. It's a unit of grammar. A group of words, sometimes with complete meaning and sometimes incomplete or dependent meaning. Fine? Good. तो हमारे पास क्लासेस की किस्में हैं. हमारे पास एक क्लास है इंडिपेंडेंट क्लास, एक क्लास है डिपेंडेंट क्लास, हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास है, हमारे पास रिलेटिव क्लास है. तो हम देखें कि एग्जाम्पल से हम क्लास को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर बड़े बड़े यूनिट्स बनाते हैं. बचपन में हम स्कूल जाते हैं, बच्चों को ABCD सिखाया जाता है. लेटर्स, these 26 letters constitute one alphabet. These letters combined form words, words, a group of letters with some that signifies something. So after words combine to form different word patterns. जैसे कि इससे पहले भी मैंने कहा, एक word pattern होता है phrase, जिसमें हमने कहा a group of a word or a couple of words or more words with some idea but not complete meaning. जैसे I discuss with you, discuss with is a phrase. Class भी इसी तरह है. Class is next to phrase but smaller than sentence. मैं आपसे कहूं, I went to the place where I met my wife first time. I went to the place, one part where I met my wife, second part. These two parts are two clauses of the same sentence. Sentence तो सिंगल है लेकिन इसमें दो clauses है. जैसे मैं आपको कहूं, एक clause जो मैंने आपसे कहा, I went to the place. It's an independent clause, क्योंकि इसको अलग रखो तो अलग रहेगा, फुल स्टॉप पीछे डालो तो इट हैज गॉट कंप्लीट मीनिंग. लेकिन दूसरा वाला जो इसका पार्ट है, आई मेट माई वाइफ फर्स्ट टाइम, तो ये वाला जो क्लास है इसकी मीनिंग प्राइमरी क्लास पर डिपेंडेंट है, फर्स्ट क्लास पर डिपेंडेंट है. तो इस वाले क्लास को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास, या इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं. इंडिपेंडेंट क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, या उसको हम मैन क्लास भी कहते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं. आप यहां देखिए, यहां पर भी मैंने शायद यही एग्जांपल दी है. आई वेंट टू द प्लेस वेयर आई मेट माय वाइफ फर्स्ट टाइम. और इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल दी है, अली इज अ डॉक्टर एंड फातिमा इज अ टीचर. अली इज अ डॉक्टर, ये एक सेंटेंस है, ये एक क्लास भी है. एंड फातिमा इज अ टीचर, एंड ने इन दो क्लासेस को आपस में मिलाया, एंड कंजंक्शन है. ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है और इसका जो दूसरा क्लास है वो भी इंडिपेंडेंट है. जब दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम इनको कहते हैं ये कोऑर्डिनेट क्लासेस है. गुड. उसके बाद जैसे आई लाइक म्यूजिक इट्स अ वन क्लास सेंटेंस. आई एम अ टीचर, वन क्लास सेंटेंस. He plays cricket, it's a one class sentence. He plays cricket where there is a big ground. Now इसमें twist आ गया. He plays cricket where there is a big ground. Where there is a big ground,
It's dependent clause. He plays cricket. It is independent clause, but together it makes a single sentence. That means clause is next to the phrase, but one step lower than the sentence. This kind of grammar, where you understand the structure of grammar, where you see how letters combine from words, phrases, clauses, sentences, paragraph, composition, essay, so on and so forth, just like cells, tissues, organ system, organism, species, whatever. Such a kind of grammar is called as structuralism. This structural grammar helps students to understand the structure of a language. This is the written aspect of language, and we are discussing the written part of it. Raja is a brave boy who saved a baby from drowning. Yes, Raja is a brave boy. Okay, it is a sentence you can say, but it's a clause. It's a one clause sentence. Who saved a baby boy from drowning? This who, this gave relation to this part of the sentence. This who gave relation with the brave boy. So who से यहाँ drowning तक ये जो दूसरा इसका clause है, इसको हम relative clause कहते हैं, because it gives relation. So स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया. तो वहां पर एप्लीकेबल पार्ट भी इसका होता है. तो एप्लीकेबल पार्ट से पहले तो इंसान को चीजों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. डेफिनेशन मीन्स टू डिक्लेयर द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ समथिंग. फिर इसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए. फिर किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी पता होना चाहिए. इसका एप्लीकेशनल पार्ट क्या है, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे, तो कैसे क्वेश्चन पेपर्स में इसके मार्क्स आते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, वी होप कि यू विल, आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे. टाइम टेबल जहां पढ़ते हैं वहां टाइम टेबल रखिए. कम से कम एक सब्जेक्ट का 1 घंटा रखिए, 1.5 घंटा रखिए, मैथ के 2 घंटे रखिए. इसके अलावा आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स, टेक्स्ट, yes, notes, guide, whatever material you have got, it's very best for you. Plus you should have a focus. कुछ एम्स होते हैं. एम एक तो स्पेसिफिक होता है, दूसरा जनरल होता है. प्रियोरिटी बेस्ड एम ये है कि आप इस वक्त 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं. आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 9th 10th हम अच्छे से पढ़ें, कोई भी टॉपिक मिस ना करें, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, सब्जेक्टिव एनालिसिस करें, ताकि आगे जाके आप बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई करें, आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बने, एक सक्सेसफुल इंसान आप बने. इसके अलावा सो थैंक यू.